السلام علیکم دوستو، قیامت سے پہلے عذاب قبر کا تصور اسلامی عقائد میں برزخ کے مرحلے سے جڑا ہوا ہے جو موت اور قیامت کے درمیان کا درمیانی دور ہے۔ اس بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ بینگ مسلم ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک ڈے آف ججمنٹ ہے۔ اس دن ہر کسی کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہ ڈکلیئر ہوگا کہ ہو از رائٹ اینڈ ہو از رانگ، ہو ڈیزرو جنہ اینڈ ہو ڈیزرو جہنم۔ لیکن قبر میں پھر جزا اور سزا کا جو معاملہ ہے، قبر میں عذاب کیوں ہونا ہے بیفور دی ڈے آف ججمنٹ؟ ابھی رزلٹ ڈکلیئر ہونا ہے قیامت کے دن، تو قبر میں عذاب پھر کیوں ہونا ہے؟ اگر کوئی گناہ گار ہے تو قبر جنت کے باغیچے میں باغیچہ کیوں ہے، یہ پہلے کیوں ڈکلیئر ہوتا ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ یوم القیامہ میں ہر ایک کو پتہ لگے گا انہوں نے کیا گناہ کیے، کیا اچھا کام کیے، کیا وہ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، تو یہ قبر کے عذاب کیوں؟ میں اس کی مثال دوں گا۔ جب آپ کبھی پڑھتے اسکول میں یا کالج میں، ایک ہوتا ہے فائنل ایگزام، اور اس کا جواب ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آئیں گی۔ فائنل ریکمپنس، جو فائنل ریکمپنس وہ ہوئے گا یوم القیامہ میں، آن دی ڈے آف ججمنٹ۔ اگر کوئی شخص جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے اور جنت میں جاتا ہے، وہ سفلتا پاتا ہے، نہیں تو یہ دنیا ایک کھیل ہے۔ تو آیت میں صاف ذکر ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت، ہر نفس موت کو چکیں گی، اور فائنل حساب کتاب ہوگا یوم القیامہ پہ۔ اور جو انسان جہنم کی آگ سے بچے گا اور جنت میں جائیں گا، وہ سفلتا پائیں گا، نہیں تو یہ دنیا ایک کھیل ہے۔ مطلب ٹوٹل فائنل حساب کتاب آخرت میں۔ جس طریقے سے ہم جب کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ایک ہوتا ہے فائنل ایگزام، ایک ہوتا ہے ٹرمینل ایگزام، برابر ٹرمینل ایگزام ہوتا ہے کہ نہیں؟ کچھ ہوتا ہے ویکلی ٹیسٹ۔ تو جب بھی آپ کوئی بھی چیز اچھا یا برا کرتے ہیں، آپ کو اس کا پنشمنٹ، اس کے جو سزا یا جزا، آپ اچھا کام کیے اس کا جزا یا برا کام کیے اس کی سزا، 3 جگہ مل سکتی ہے، ایک دنیا میں، دوسری برزخ میں، اور ایک آخرت میں۔ 3۔ آپ نے کچھ غلط کیے، اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو سزا دے سکتا ہے۔ آپ نے اچھا کام کیے، یہ دنیا میں ریوارڈ دے سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سزا برزخ میں دے یا ریوارڈ برزخ میں دے، ہو سکتا ہے کہ آخرت میں دے، سب سے اچھا آخرہ ہے۔ تو جو بھی آپ غلط کرتے ہیں، آپ ٹوٹل کریں گے، اس کی سزا دنیا، قبر اور آخرت میں ملائیں گے، ٹوٹل صحیح رہیں گے۔ کوئی بھی اچھا کام کریں گے، اس کا ریوارڈ دنیا میں مل سکتا ہے، آخرت میں، قبر میں اور آخرت میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بھی غیر مسلم ہے، وہ جو بھی اچھائی کرتے اس کو دنیا میں اس کا ریوارڈ مل جاتا ہے۔ ایک مشرک ہے جو شرک کرتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اچھے کام کرتا ہے، دنیا میں اس کی ریوارڈ مل جاتا ہے، تو وہ آخرت میں اللہ سے کمپلین نہیں کر سکے گا مجھے تو انعام ملا نہیں۔ مثال کے طور پہ مدر ٹریسا، اس کو بڑے بڑے ایوارڈ ملے، اچھا کام کی، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بولے گا تم نے اچھا کام کیے، تم کو شہرت مل گئی، تم کو پورا ریوارڈ دنیا میں ملا۔ جو غلط کام کیے، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سزا یہاں نہیں بھی ملے۔ کتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے اسمگلر ہیں، ڈاکو ہے، اپنی زندگی اچھے عیش و آرام سے دنیا میں بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بولا چلو تم کو سزا یہاں نہیں دوں گا، قبر میں دوں گا اور آخرت میں دوں گا، یا صرف آخرت میں دوں گا۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ ارے میں تو بہت تیر مارا، غلط کام کیا، مشرک ہے، ڈاکہ ڈالا، لوگ کا قتل کیا، دنیا میں کچھ نہ اس کو پنشمنٹ ملی،
पनिशमेंट मिल सकती है कब्र में और आखिरत में। तो ये कहना कि आखिरत में पनिशमेंट मिलेंगी तो कब्र में क्यों मिल रही है, आप टोटल करेंगे तो सही रहेगा। हो सकता है कि पार्ट आपको दुनिया में मिली, पार्ट सजा आपको कब्र में मिली, बाकी की मिलेंगी आखिरत में। हो सकता है कि दुनिया में आपको सजा मिली ही नहीं जो गलत काम किया आपने, हो सकता है कब्र में भी नहीं मिली तो पूरी मिलेंगी आखिरत में। तो टोटल सही है ये, हाँ, लेकिन डबल सजा नहीं मिलेगी। डबल मतलब आपको मिलना चाहिए 100 पॉइंट्स की सजा, हो सकता है कि 2 पॉइंट दुनिया में मिलेगा, 8 पॉइंट कब्र में, 90 पॉइंट आखिरत में। अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेगा 100 पॉइंट दुनिया में भी, 100 पॉइंट कब्र में भी, 100 पॉइंट आखिरत में, ये गलत है। तो अगर 100 पॉइंट की सजा मिलना चाहिए, आपको कुछ पॉइंट दुनिया में मिलेंगे, कुछ पॉइंट कब्र में, बाकी मिलेंगे आखिरत में। जो लोग, इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते कि ये दुनिया जो है एक मुस्लिम के लिए कैद है और एक काफिर के लिए जन्ना है। तो एक गरीब यहूदी फटेले टुटेले कपड़े पहन के, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहीमुल्लाह, उनके पास आते हो, बोलते ये हदीस की क्या मानी है, मैं तो गरीब हूं और आपके रसूल कहते हैं कि काफिर के लिए, और मैं काफिर हूं, काफिर के लिए दुनिया जन्नत है, मैं गरीब हूं, मेरे कपड़े फटे, कहां जन्नत है, आपके लिए, आप मुस्लिम है, आपके लिए कैद है, आप तो ऐशो आराम करें, कहां कैद है। तो वो फरमाते हैं, जवाब देते हैं हाफिज हजर अस्कलानी कि मुसलमान जानता है कि जो उसे आखिरत में मिलेगा वो जन्नत, वो इतना अजीम है कि अगर आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी हो, वो आखिरत के मुकाबले में कुछ नहीं है, ये कैद है। आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, सबसे ताकतवर हो, सबसे बड़े राजा हो, लेकिन जो आपको जन्नत में इनाम मिलेगा वो इस दुनिया के मुकाबले में कैद है। और अगर वो काफिर ये जाने कि आखिरत में उसको जो सजा मिलेंगी, यहां चाहे वो बदतरीन से बदतरीन इंसान हो, सबसे गरीब हो, सबसे भूखा, फिर भी आखिरत के अंदर जो सबसे कम आग आपके तलवे के नीचे रहेंगी तो आपका भेजा उबलेगा, सबसे छोटी से छोटी आग। तो अगर आपको पता चलेगा कि क्या आपको पनिशमेंट, सजा मिलेंगी आखिरत में, इस दुनिया में आप सबसे बदतरीन इंसान भी रहेंगे, फिर भी आपके लिए जन्नत है, तो ये तशरीह है उसकी। तो टोटल फाइनल रिकम्पेंस आखिरत में है, टोटल पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड दुनिया, कब्र और आखिरत है। होप द आंसर द क्वेश्चन। हम लास्ट सेशन आखिरी को सवाल माइक नंबर 2 पे मुख्तसर आखिरी सवाल। हेलो हेलो, मसीह खुदावंद में आप सबको सलाम जी। मेरा नाम साइमन नासर है। ये आखिरी सेशन सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, माइक नंबर 2 पे जो भी मुस्लिम है वो सवाल पूछ सकते हैं। ये आखिरी सवाल सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है, माइक नंबर 2 के पास जो मुस्लिम हैं वो सवाल कर सकते हैं। सर आपने सवाल किया था कि ये राउंड जो है वो मसीहियों के लिए है, ये राउंड राउंड ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा था लास्ट राउंड सिर्फ मुसलमानों के लिए, लास्ट राउंड शुरू हो चुका हुआ है, उसका आखिरी सवाल है ये, सिर्फ मुस्लिम्स के लिए सवाल है। प्लीज मुस्लिम भाई आगे आके सवाल कर लो। सर मैं मुस्लिम हूँ। मैं भी मुस्लिम हूँ। मुझे एक सलाम पहुंचाना है। भाई सवाल करने वाला भाई आगे है, सलाम पहुंचाने वाला भाई आगे ना है। एक सलाम, यार मेरा सवाल है, एक सलाम पहुंचाना है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हैदर गुलफाम है और मैं दीने हक का तालिब इल्म हूँ। मेरा डॉक्टर साहब से मुख्तसर सवाल ये है कि आज के दौर में बेहतरीन जिहाद कौन सा है? एक सलाम पहुंचाना है। माइक बंद कर दीजिए जी, माइक बंद कर दीजिए। जैसे मैंने कहा था कि आखिरी राउंड सिर्फ मुसलमानों के होंगे और जो सवाल पूछना चाहते थे उसने पूछ चुका था, साइमन पहले सवाल पूछ चुका है तो उसको मौका दिया गया है, और अक्सर सवाल गैर मुस्लिम ने पूछे, तो ये आखिरी राउंड है और ये आखिरी सवाल है। भाई साहब ने पूछा कि आज की तारीख में सबसे बेहतरीन जिहाद क्या है?
आज की तारीख में सबसे हम देखते हैं माशरे में, हमारे माशरे में टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, सोशल मीडिया आ चुका है, कई फितने आ चुके हैं। सबसे बेहतरीन जिहाद है जिहाद अपने नफ्स के साथ, अपनी नफ्स के साथ जिहाद करना एक अजीम जिहाद है। हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, साइंस बढ़ रही है, कितने चीज़ें हमको सोशल मीडिया पे आ रही है, और कई बार मुसलमान भटकते हैं और कुरान और हदीस पे अमल नहीं करते। हमारा जिहाद होना चाहिए कि हम कुरान और मजीद के नज़दीक आए, कुरान और मजीद के तालीमात पे अमल करें। तो मेरे नज़दीक आज की तारीख में सबसे बेहतरीन जिहाद ये है कि कुरान और मजीद के तालीमात पे अमल करें। कुरान को तर्जुमे से पढ़िए, हदीस को पढ़िए और इस पे अमल करिए। इंशाअल्लाह मुसलमान फिर से दुनिया के चोटी पे पहुंचेगा। आज की हालत में मुसलमान को लोग नीचे देखते हैं, फुटबॉल की तरह लात मारते हैं, क्योंकि हम कुरान और हदीस से दूर है। हम अगर जिद्दोजहद करेंगे कुरान और हदीस के रोशनी में, कुरान और हदीस के तालीमात पे अमल करेंगे, ये सबसे बड़ा जिहाद है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दोस्तों, इस्लामी तालीमात के मुताबिक क़यामत से पहले इंसान मौत के बाद एक दरमियानी मरहले में दाखिल हो जाता है जिसे बरज़ख कहा जाता है। ये मरहला दुनियावी ज़िंदगी और क़यामत के दिन के दरमियान होता है, जहाँ इंसान के अमाल के मुताबिक उसे राहत या गज़ाब दिया जाता है। गज़ाब कब्र उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी की, नमाज तर्क की, झूठ, जुल्म, शिरक या दिगर कबीरा गुनाहों में मुब्तला रहे। जब इंसान फोत हो जाता है तो फरिश्ते इससे 3 बुनियादी सवालात करते हैं: तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरा नबी कौन है। नेक लोग इन सवालात के दुरुस्त जवाबात देकर कब्र में सुकून और राहत पाते हैं, जबकि गुनाहगार लोग जवाब ना दे सकने की सूरत में सख्त गज़ाब का सामना करते हैं। कब्र इन पर तंग हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और उनके अमाल के मुताबिक उन्हें रूहानी व जिस्मानी तकलीफ़ दी जाती है। बाज़ अहादीस के मुताबिक कब्र में सांप, बिच्छू या आग जैसी चीज़ों से गज़ाब दिया जाता है जो इंसान के गुनाहों की नौइयत पर मुनहसर होता है। यह गज़ाब क़यामत तक जारी रहता है और बाज़ उलमा के मुताबिक यह गज़ाब बाज़ गुनाहों का किफ़ारा भी बन सकता है, ताकि क़यामत के दिन इंसान को हल्की सज़ा दी जाए। कुरान में अगरचे लफ्ज़ गज़ाब कब्र बराह रास्त नहीं आया, लेकिन मुतअद्दिद आयात में मौत के बाद की हालत, फरिश्तों का सवाल और जहन्नम की झलकियाँ बयान की गई हैं, जिन्हें उलमाए किराम ने गज़ाब कब्र की दलील के तौर पर लिया है। ये अक़ीदा इंसान को नेक अमल की तरग़ीब देता है और दुनियावी ज़िंदगी में एहतियात व तक़वा की तरफ माइल करता है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।